Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will proceed for lesson unit number 4. So lesson number 1 for unit number 4 that we will go. So in surveying there are three important entities already we have seen. First we have to measure the distance. Second we have to measure the angle or bearing, and third we have to measure the height or elevation. So whenever we are collecting the data from the field for civil engineering projects, these three things are always important. So in previous unit number 2 we have seen that how we can carry out the linear measurement, what are the different corrections, what are the different methods, and how the problems can be solved, and true distance how we can calculate. Now we will go for next entity, that is डायरेक्शन. तो जब हम लोग फील्ड में सर्वे कर रहे हैं तो हमने सर्वे लाइन को सेट किया, उस पर परपेंडिकुलर प्लॉट ड्रॉप किए, हमने ऑफसेट्स हमने मेजर किए, और एक सर्वे लाइन के मदद से उसके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हमने ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्ड किया, एंड देन वी कैन प्लॉट द मैप ऑफ दैट फील्ड एरिया. हम लोग उसका नक्शा बना सकते हैं. बट वो जो सर्वे लाइन है ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन से काम होने वाला नहीं है हमारा. तो एक लाइन के बाद में दूसरी लाइन, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सारी सर्वे लाइन हमारी एक लाइन में रहेगी. सो अनदर इंपॉर्टेंट एंटिटी दैट वी हैव टू मेजर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ दैट सर्वे लाइन. तो उस लाइन की दिशा क्या है यह हमको नोट करना होता है. एंड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन वी हैव टू मेजर, और वी हैव टू कैरी आउट द मेजरमेंट फॉर द डायरेक्शन, एंड दैट इज डन बाय यूजिंग द कंपास. तो हमको कंपास पता है. इन स्कूल डेज ऑल्सो वी हैव लर्न कि एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल, लोहचुंबक की सुई होती है, और वो सुई हमको उत्तर या दक्षिण दिशा दिखाती है. सो दैट सिंपल कंपास वी आर ऑलरेडी नोइंग, सो दैट वी कैन यूज हियर फॉर द इंजीनियरिंग मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्शन. तो हम लोग अभी कंपास सर्वे के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं. सो नाउ इन दिस यूनिट फर्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट, and that is regarding the compass and the concept of the bearing. So in this lecture 1 we will understand the different concepts are there. So here whatever we are measuring the bearing with the help of compass, हम सर्वे लाइन की दिशा या डायरेक्शन हम लोग मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. हमको मेजर करना है. सो ऑल ऑफ यू नो दैट इफ दिस इज नॉर्थ देन दिस इज साउथ, एंड देन टुवर्ड द राइट साइड इट इज ईस्ट, एंड इधर this is west. So this north, south, east, west direction already we are knowing, and this type of compass we generally use for measurement of the direction. नॉर्थ दिशा किधर है ये पता करने के लिए हम लोग अभी तक का कंपास इस्तेमाल करते थे. अब हमें नॉर्थ दिशा का रेफरेंस लेके जो भी हमारी सर्वे लाइन है उसकी दिशा क्या है उस उत्तर दिशा के परिप्रेक्ष्य में, वो हमें जानना है. So we are interested in measuring the angle of the survey line with respect to north direction. So for that now we have to understand the basic concepts regarding the bearing. So here you can understand that for any particular line, survey line when we are talking about, so there are three things are there. तो क्या क्या है? So we can see here in the, suppose this is our one of the survey line, and this is our start station A, and this is our start station B. तो ये हमारी सर्वे लाइन है. तो एक तो हो गया इसका डिस्टेंस. सो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन with the help of chain and tape that we have already seen. Now if we, this is in the top view, this is in the top view. Now if you observe this line, if you observe this line in the elevation, so then this ground may be like this, and at the bottom this may be the point B, and here this may be the point A, and this is our ground. So this is the cross section of that line AB. So here what actually happened, the A point is higher than the B point, so here there is height also. So when we are doing the survey, तो हमको लाइन की लंबाई तो गिनना ही है, लेकिन दोनों पॉइंट में का डिफरेंस या हाइट की ऊंचाई भी गिनना है.
अलॉन्ग विथ दैट, अब ये एक लाइन हो गई, सपोज दूसरी लाइन मुझे इधर जा रही है, सो टॉप व्यू में मैंने अभी अंदाजे बना लिया, लेकिन जब मैं मैप बनाऊंगा या नक्शा बनाऊंगा तो मुझे ये इंटरनल एंगल लगेगा. व्हाट इज दिस एंगल? सो आई हैव टू आल्सो मेजर द एंगल. So these are the three important entities in the survey: measurement of the distance, measurement of the angle and measurement of the height or elevation. तो हमें अभी एंगल गिनते आना चाहिए. सो एंगल मीन्स इन द टॉप व्यू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, सो ये हमारा समझ लो ऐसा प्लॉट है, हमारा इस शेप का प्लॉट है, तो ये वाला भी एंगल हमको लगेगा, ये वाला भी एंगल हमको लगेगा, ये भी एंगल लगेगा, और ये चारों साइड के डायमेंशन हमको लगेंगे, तब जाके हम लोग उसको प्लॉट को मार्क कर सकते ग्राउंड पे. सो any map if you want to draw, it is always compulsory that you require distance and also the angle. यदि आपका प्लॉट स्क्वायर है, सो दिस इज अ सिंपल रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेकिन आपको मालूम है कि ये एंगल 90 डिग्री का है करके. सो वेयर एवर, बट ऑलवेज दिस इज नॉट पॉसिबल. हमेशा सभी प्लॉट हमारे रेक्टेंगल नहीं होने वाले. सो दे आर हैविंग डिफरेंट शेप, सो दे मे बी हैविंग डिफरेंट शेप वॉट एवर द सिचुएशन वॉज देयर. So length we can measure, but also now we have to measure the angle. ये angle भी आपको गिनने पड़ेंगे, and this angle measurement now we have to learn, and for that in surveying we are using compass. So what is actually we are doing, so that we will understand now the what is actually the concept of bearing. So here suppose हम लोग जब भी मैप बनाते हैं, so now onward for purpose of this learning, we are always considering that when we are writing here, so हम लोग ऐसा करते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन वी आर शोइंग, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. सो वी आर ड्राइंग लाइक दिस, एंड सपोज दिस इज माई स्टेशन ए एंड माई लाइन इज गोइंग लाइक दिस. सो लाइन, दिस इज लाइन ए बी. सो ये नॉर्थ डायरेक्शन से ये एंगल मेजर कितना है ये मुझे गिनना पड़ेगा. सो आई हैव टू मेजर दिस एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो फॉर दैट पर्पज आई हैव टू मेजर दिस थीटा, एंड फॉर दैट आई विल यूज द कंपास. मैं कंपास का इस्तेमाल करूंगा. अब कंपास में मेरी सुई जो है मेरी, वो सुई मुझे दिखाएगी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर मेरी सर्वे लाइन जा रही, तो फिर मैं कंपास पे देखूंगा कि ये कितना एंगल है, तो मुझे एंगल पता चलेगा. सो देयरफॉर हियर वी आर मेजरिंग द एंगल ऑफ सर्वे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड एज bearing. So in the survey we are calling the bearing is angle of survey line with respect to north direction. So here when we are talking about angle, so angle is different thing and bearing is different thing. So when we talk about angle, so it is a geometrical entity. तो हमको पता है कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा समझ लो 120 डिग्री का हो गया. सो दिस इज लाइन ए बी सी, and I will see that angle ABC is equal to 120 degree. So this is actually the measurement of angle. This is geometrical entity. भूमिति में हम लोग जो एंगल गिन रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिखा. But suppose here we consider that this is our north direction and this is line AB, then this is another line. So always our north direction is fixed. So here I want to measure this angle. So ये एंगल मुझे चाहिए, तो मुझे इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल गिनना पड़ेगा. लेकिन यदि मैं लाइन की बात करता हूँ ए बी, तो मुझे ये नॉर्थ डायरेक्शन से ए बी का एंगल कितना है ये भी एंगल मैं गिन सकता हूँ. या बी सी लाइन के लिए मैं ये नॉर्थ डायरेक्शन से ये वाला एंगल गिन सकता हूँ, ये वाला. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ऑलवेज मेजरिंग द एंगल ऑफ सर्वे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. And that angle of survey line with respect to north direction, that is called as bearing. So first of all we have to understand the concept of bearing. So in the bearing we are using the compass. Compass is showing us the north direction, and with that north direction whatever the angle made by our survey line we are observing, that angle is called as bearing of survey line. So here the bearing of survey line may be of different
अब यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है और लाइन हमारी इधर जा रही है ऐसी. So suppose now this is station B and this is C. So in this case line BC इसका जो bearing है वो हो जाएगा ये वाला एंगल. So I have to measure this angle with respect to north. So that will be the bearing of line BC with respect to north direction. So that also I have to remember. So here the line is in first quadrant. ये वाला जो हमारा ये first quadrant है, नॉर्थ ईस्ट quadrant के अंदर ये लाइन है हमारी. यहाँ पे हमारे आपकी लाइन BC है, ये आपकी आ गई साउथ एंड ईस्ट क्वाड्रेंट में. सो डिफरेंट सिचुएशन में बी देयर फॉर एनी लाइन. सो हियर वी कैन कंसिडर दैट फॉर अनदर. सो हियर सपोज दिस इज अवर नॉर्थ डायरेक्शन एंड लाइन इज लाइक दिस. सो आई हैव टू मेजर दिस मच एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. तो यहाँ पे मेरी साउथ और वेस्ट ये क्वाड्रेंट में मेरी लाइन बन रही है यहाँ पे. सपोज दिस इज सी डी. सो दैट मे बी देयर. और सपोज द डायरेक्शन इज हियर एंड माई लाइन इज लाइक दिस एंड दिस इज नॉर्थ. सो आई हैव टू मेजर दिस मच एंगल. सो दिस इज वेस्ट. सो माई लाइन इज इन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर कि हमारी सर्वे लाइन नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है या फिर साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है या फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है या फिर यहाँ पे साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है. सो एनी सर्वे लाइन may be having different quadrant and according to quadrant we have to measure the angle of survey line made with respect to north direction. So for that purpose now we have to actually use the compass. तो ये कंपास में हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, उसके हिसाब से आपकी सर्वे लाइन जो भी होंगी उसका एंगल आपको पता चलेगा. सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रू मेरिडियन. So true meridian, then true bearing, and then magnetic meridian and magnetic bearing. So in this lesson, now we will proceed for one by one, so that we will understand what is actually the concept regarding the bearing. So here now we will see that the bearing of line. So now the bearing of line is a horizontal angle made by the survey line with reference to some direction or meridian. So whenever we are measuring the angle of a line with respect to north direction, that is called as bearing. But we can also consider that any meridian. Meridian means axis. तो हमारा नॉर्थ साउथ हमारा एक्सिस है और उससे हम लोग जब एंगल गिन रहे हैं, सो दैट इज अवर बेयरिंग. बट इफ दैट एक्सिस मे बी डिफरेंट, सो दैट एक्सिस वी कॉल्ड इट एज मेरिडियन. सो देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ मेरिडियंस आर देयर. सो फर्स्ट इज ट्रू मेरिडियन, second is magnetic meridian, and third is arbitrary meridian. So in this diagram you can understand that this is our earth, and on the earth surface आप जहाँ पर भी खड़े होंगे वहाँ पे आप जैसा कंपास रखेंगे, सपोज यू विल प्लेस द कंपास हियर, so whatever the magnetic attraction was there, magnetic waves are there, line of magnetic force are there, accordingly this compass will show the north direction. So at a particular place with respect to that magnetic line we are measuring the angle. So the axis shown by this magnetic needle, that is called as magnetic meridian. So that is the magnetic meridian which is shown by the magnetic needle.
अब अलग अलग जगह पे जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन, अब यहाँ पे मैग्नेटिक पोल हमारा ये वाला है नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे एक्चुअली मैग्नेटिक डायरेक्शन ऊपर दिखेगी आपकी। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस की फोर्सेज जा रही है उसके हिसाब से अपने मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन चेंज होगी। सो योर डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक pole, they are changing all over the earth, and therefore the axis shown by the magnetic needle, that is called as magnetic meridian. बट हम लोग यदि अर्थ का विचार कर रहे हैं तो जो हमारा एक्चुअली नॉर्थ पोल है और जो हमारा साउथ पोल है, सो लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट इज आवर exactly the meridian, north south meridian. So the line joining the north and south pole of the earth, it is indicating the true meridian. तो हमारा ट्रू मेरिडियन जो है वो अलग है, जो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करता है. सो दैट इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो दैट इज अवर ट्रू मेरिडियन. बट दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व. आप लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंपास का इस्तेमाल करेंगे और कंपास की सुई आपकी अलग हर जगह पे अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगी. सो दिस डायरेक्शन मे डिफर फ्रॉम दिस ट्रू मेरिडियन. सो देयरफॉर द डायरेक्शन शोन बाय द मैग्नेटिक नीडल, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन. तो हमको मैग्नेटिक मेरिडियन का इस्तेमाल हमको करना है. कंपास से जो दिखाई डायरेक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. एंड द ट्रू मेरिडियन में भी डिफरेंट. एंड सिमिलरली जैसा मैं ट्रू मेरिडियन बोलो तो मेरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल है, उस प्रकार से मैं दूसरा कोई आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री एक्सिस भी ले सकता हूँ. सो आर्बिट्री इज दैट इज द एक्ज्यूम मेरिडियन. सो विथ दिस वे वी हैव टू यूज द concept of meridian, that is true meridian. The true geographical meridian passing through the point of line of intersection of the earth surface by the plane containing the north south pole at a given point. So they are not parallel to each other and at the different place. So true meridian बोले तो line passing through the north and south pole at that given point. So that is always changing. So that we have to remember. But that we cannot identify with the help of compass. Compass आपको magnetic meridian दिखाएगा. So direction indicated by the free suspended property balance of the magnetic needle, free from all other attracted forces. So that direction is called as magnetic meridian. तो जो कंपास हमको डायरेक्शन दिखाता है वो अपना हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन. और जो ट्रू मेरिडियन है दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल एट दैट गिवन लोकेशन ऑफ द अर्थ. सो देयरफॉर ट्रू मेरिडियन इज डिफरेंट एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज different. So these are the two different locations are there. And another concept is there, that is called as arbitrary meridian. So here the any direction is assumed to be the reference meridian to carry out the small survey. So that axis we can call it as arbitrary meridian. So कोई भी सर्वे में हम लोग जो एक्सिस यूज कर रहे हैं या मेरिडियन यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ऑलवेज ए मैग्नेटिक मेरिडियन. क्योंकि हम लोग कंपास का इस्तेमाल यदि करेंगे तो कंपास आपको नॉर्थ और साउथ पोल दिखाएगा. सो हियर यू कैन सी दैट ए पर्टिकुलर कंपास मे बी देयर. सो दिस टाइप ऑफ कंपास इफ यू आर यूजिंग, सो इन दैट दिस नीडल इज शोइंग द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन. सो दिस डायरेक्शन शोन बाय दिस नीडल, दैट इज एक्चुअली अवर magnetic axis or magnetic meridian, and with reference to that only we are always taking the observation with the help of this type of compass. So we are always using this type of compass for measuring the bearing of survey line, and therefore when we observe with the help of compass, so that observation is always magnetic bearing. That bearing is always magnetic bearing, क्योंकि वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो आपके कंपास ने दिखाया उससे बना हुआ एंगल है आपके सर्वे लाइन का. सो हाउ दैट एंगल कैन बी मेजर्ड, so that we will see. So here we have to understand that we are using this type of prismatic compass for measuring the bearing. So here you can see that here the compass is shown और ये हमारा है prismatic compass. So in the prismatic compass there are different components are there, so that we will see in the detail. तो यहाँ पे ये बीच में उसका एक ऐसा पाइवट पॉइंट है और उसके ऊपर ये एल्यूमिनियम की व्हाइट वाली जो रिंग है, ये रिंग ऐसी सस्पेंडेड है
और उस पर यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लिखा है और उसके ऊपर ये ऐसे ग्रेजुएशन की मार्किंग है। तो ये जो डिस्क है पूरी एल्यूमिनियम की, ये ऐसी फ्लोटिंग है यहाँ पे। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट द डिस्क इज फ्लोटिंग ऑन द पाइवॉट। तो एल्यूमिनियम की यहाँ पर रिंग है और ये रिंग के यहाँ पे ये जो बीच का आर्म है इसके नीचे अपनी मैग्नेटिक नीडल लगी वाली है। तो वो मैग्नेटिक नीडल के साथ में ये एल्यूमिनियम की रिंग भी ऐसी नॉर्थ डायरेक्शन बराबर दिखाती है अपने को। और यहाँ पे फिर उसको देखने के लिए यहाँ पर एक प्रिज्म लगा है और वो प्रिज्म से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, तो इस टाइप से हम लोग उसको कंपास को ट्राइपॉड के ऊपर, स्टैंड के ऊपर लगाते। सो हियर दिस कंपास, यहाँ पर उसको एक ऑब्जर्वेशन के लिए प्रिज्म लगाया, यहाँ पर होल है अपने को, और ये होल में से आपको यहाँ पे उसको एक लगी है ऑब्जर्वेशन वेन। सो हियर देयर इज वर्टिकल क्रॉस हेयर इनटू दिस। तो आपको यहाँ से सर्वे लाइन की जो रेंजिंग रॉड है उसको आपको देखना है। तो आपका यहाँ का जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म को यहाँ पे एक स्लिट होती है। सो देयर इज वन स्लिट, इनटू दिस स्लिट यू हैव टू मैच दिस थ्रेड एंड यू हैव टू मैच विद द रेंजिंग रॉड। तो आपको क्या करना है, ये कंपास स्टैंड पे लगाएंगे हम लोग और उसके स्लॉट में से क्रॉस हेयर के साथ में सामने का रेंजिंग रॉड देखेंगे तो आपका जो कंपास है वो सर्वे लाइन के साथ में अलाइन हो जाएगा। तो अलाइन होने के बाद में आपके ये जो रिंग है उसके ऊपर का जो एंगल है वो एंगल आपको नोट करना है, क्योंकि आपका ये जो रिंग है ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगी और आपका ये जो बॉक्स में से जाने वाली लाइन है वो आपकी सर्वे लाइन होगी। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर सर्वे लाइन जा रही। सो दिस एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन दैट वी कैन मेजर and that is the bearing of line. So we can use this type of prismatic compass. So we will go into the details of this. So here the component of the prismatic compass are shown. तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कंपास का। So here we will start with this. So number one here is the needle. तो ये जो एक नंबर है यहाँ पर, ये आपको ये यहाँ पे नीचे मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है जो लो चुंबक से मटेरियल से, स्टील मेटल से नहीं रहती है, इट इज ऑफ मैग्नेटिक मेटल। तो ये मैग्नेटिक नीडल आपको नॉर्थ साउथ के साथ में मैग्नेट के जैसा आपको पाइवॉट पे रखने के बाद में नॉर्थ और साउथ दिखाएगी। सो नंबर वन इज हियर नीडल, नंबर टू इज पाइवॉट, यानी यहाँ पर उसको एक पॉइंट लगे वाला है। सो विद दिस पाइवॉट दिस नीडल इज फ्लोटिंग। देन नंबर थ्री इज अगेट कैप। तो ये वाली जो दिख रही है नंबर 4, ये है हमारी एल्यूमिनियम की रिंग और वो एल्यूमिनियम रिंग को फिट करने के लिए ऊपर से उसको कैप लगाई गई है। सो लाइक वे एक नंबर के नीडल के ऊपर एल्यूमिनियम की रिंग है, एल्यूमिनियम की रिंग के ऊपर कैप है और ये पूरी असेंबली अपने ये पॉइंट के ऊपर फ्लोटिंग हो रही है ऐसे। सो लाइक वे द नंबर 4 इज ग्रेजुएटेड डिस्क, यानी ये वाली जो है ये हमारी एल्यूमिनियम की रिंग है वो कंपास में। देन नंबर 5 इज स्लिट मेटल फ्रेम। सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन वेन। तो ये मेटल फ्रेम के अंदर आपको काला धागा लगा हुआ है, वो आपको ऑब्जर्व करना है रेंजिंग रॉड की तरफ। सो दैट इज नंबर 5 एंड नंबर 6 इज क्रॉस हेयर, उसके बीच में आपको ऐसा धागा लगा होता है। सो दैट इज द क्रॉस हेयर थ्रेड फॉर दैट ऑब्जेक्टिव वेन। देन नंबर 7 दैट इज मिरर, यहाँ पे आपको एक मिरर लगे वाला है, यानी ये मिरर के अंदर यदि आपको नीचे की सर्वे लाइन देखना है तो वो भी सर्वे लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आपको ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देखना है सो दैट ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व इनसाइड द मिरर। सो हियर द मिरर इज अटैच टू दिस ऑब्जेक्टिव वेन, नंबर 7। देन नंबर 8 इज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब ये जो मिरर है ये मिरर इधर से मिरर होता है ग्लास, एंड नंबर 8 इज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सो दिस इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म हियर, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारा और उसको यहाँ से देखने का होल होता है। सो द ऑब्जर्वेशन होल इज फ्रॉम दिस साइड। तो ये इतने पार्ट में उसको होल है और इसके अंदर कांच का ट्रायंगुलर प्रिज्म है। सो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर यहाँ से देखना है तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके जो यहाँ का जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ का जो एल्यूमिनियम रिंग का ऑब्जर्वेशन है वो आपको ये प्रिज्म के अंदर दिखेगा। सो दैट 8 नंबर इज द ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड देन 9 नंबर इज द आई वेन। तो ये जो है ये वाली आई वेन है हमारी, यहाँ से इसको होल है, यहाँ पे उसको स्लिट होती है जहाँ से आपको ये काला धागा आप देख सकते। सो दैट इज आई वेन एंड यू कैन ऑब्जर्व द रीडिंग फ्रॉम द आई वेन ऑल्सो। देन नंबर 10 इज फोकसिंग स्टड। तो यहाँ पर उसको एक फोकसिंग का स्टड लगा है।
तो आपको ये प्रिज्म को नीचे ऊपर करना है ताकि यहाँ का रीडिंग आपको बराबर सही में क्लियर दिखाई दे। तो उसके लिए आपको ये नंबर स्टड को एडजस्ट करके आप ये इसको बराबर नीचे ऊपर कर सकते हैं प्रिज्म को। देन नंबर 11 इज द डार्क सन ग्लासेस। अब ये सामने से जब हम लोग यहाँ से देखेंगे और ये यहाँ का काला धागा और इधर का रेंजिंग रॉड इसको देखेंगे तो कभी कभी सनलाइट के वजह से ग्लेजिंग आता है। सो हमको ऐसा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम जाता है। सो वो धागा कभी कभी आपको नहीं दिखेगा, तो उस वजह से आपके प्रिज्म के ऊपर आपको शेड करते आना चाहिए। तो यहाँ पर शेडिंग के लिए अलग अलग 2-3 ग्लासेस, ऑरेंज, ग्रीन, रेड ऐसे ग्लासेस होते हैं, उसकी छाव आप ये प्रिज्म के ऊपर गिरा सकते हो। तो जो भी ग्लेयर आ रहा है आपको नज़र विजन में आपके, तो वो ग्लेयर आपका अवॉइड कर सकते हैं आप बाय यूजिंग द डिफरेंट शेडिंग ग्लासेस। सो दैट 11 इज द ग्लास। देन 12 नंबर इज द बॉक्स। तो ये पूरा ये जो एल्यूमिनियम रिंग है वो एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है हमारी। सो नंबर 12 इज द बॉक्स एंड नंबर 13 इज द ग्लास कवर। इसके ऊपर एक ग्लास का कांच लगे वाला है जो जिसके अंदर आपका रिंग है। एंड नंबर 14 दैट इज लिफ्टिंग रिंग। तो यहाँ पे एक रिंग होती है ऐसी, तो ये रिंग से ये जो वेन आप खोल रहे हैं तो उसके हिसाब से ये जो नीडल है वो भी लॉक कर सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग ऑपरेट करके हम लोग यहाँ से ये जो कैप है इसको भी ऊपर उठा सकते हैं। सिमिलरली देन 15 इज द लाइट स्प्रिंग। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है थोड़ा सा, जो स्प्रिंग अपने को ये जो 17 नंबर की जो प्लेट है लिफ्टिंग लीवर, ये लिफ्टिंग लीवर को ये स्प्रिंग अटैच करके रखता है। एंड देन 16 नंबर इज द ब्रेकिंग पिन। यहाँ पे एक पिन लगी वाली है, ये बाहर आपको इसको उंगली से दबा सकते हैं हम लोग। ये दबाएंगे तो ये स्प्रिंग की वजह से ये जो 15 नंबर की जो लाइट स्प्रिंग है ये रिंग को अटका देगा, तो रिंग अंदर से घूमेंगे नहीं, उसको रोक सकते हैं आप ऐसे दबा के। सो दैट इज दैट अरेंजमेंट इज देयर। एंड 18 इज द सपोर्टिंग अरेंजमेंट। तो ये आपको स्टैंड पे लगाने के लिए यहाँ पे इसको सॉकेट है। सो दैट टाइप ऑफ द क्रॉस सेक्शन वाज देयर फॉर द प्रिज्मेटिक कंपास। तो जैसा कि आपने इसके पहले डायग्राम में देखा, तो उस प्रकार से यहाँ पे अपने को ये अलग अलग कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज वेन, दिस इज मिरर, इसके अंदर एक क्रॉस हेयर लगा है, यहाँ पे प्रिज्म है। सो दैट विद द हेल्प ऑफ दैट प्रिज्म यहाँ पर उसको स्लिट है, ये स्लिट में से ये धागा देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड देयर इज एल्यूमिनियम रिंग and here the shading glasses are there, and like way this type of compass is called as prismatic compass। तो ये prismatic compass हम लोग सर्वे के लिए बेयरिंग गिनने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हियर सिमिलरली दिस compass what we are using, so we have to understand the use of this compass। तो हमको तो सबसे पहले ये जो कंपास है ये एक सिंगल रॉड के ऊपर आपको लगा देना है। सो द कंपास विल बी होल्डिंग लाइक दिस। Now on that compass you have to open this observation vein। तो ये पट्टी आपकी ऐसी बंद होंगी, उसको आपको खोल के खड़ा कर देना है, तो क्रॉस हेयर आपकी खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे। एंड हियर आल्सो ये जो प्रिज्म है ये भी नीचे मुड़ा होता है, उसको ओपन करके इसके ऊपर लाना है, डिस्क के ऊपर। सो नाउ दिस इज इन द रेडी पोजिशन। सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स फॉर यूजिंग द कंपास। सो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग एंड फिक्सिंग। तो सबसे पहले आपका जो कंपास है वो स्टैंड के ऊपर, ट्राइपॉड के ऊपर लगाना है और आपको खड़ा कर देना है। अब आपका जो कंपास है वो कंपास को आपको पहले लेवल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज सेंटरिंग। यदि आपका कोई सर्वे स्टेशन है तो वो जो सेंटर है कंपास का वो बराबर स्टेशन के ऊपर आना चाहिए। सो फर्स्ट दैट यू हैव टू यूज द प्लम्ब बॉब फॉर सेंटरिंग ऑफ द कंपास। देन अनदर इज एडजस्टिंग। अब अपने को कंपास जो है वो कंपास को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको जो बॉक्स है वो लेवल करना पड़ेगा ताकि अंदर की जो रिंग है वो बराबर फ्लोटिंग हो। निडल और एल्यूमिनियम रिंग जो है वो बराबर फ्लोट होना चाहिए और वो कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। और उसका ऑब्जेक्टिव वेन भी खोलना है और ये प्रिज्म भी आपको बराबर लाना है और उसको नीचे ऊपर एडजस्ट करके इसका ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर दिखेगा, उसको उस प्रकार से फोकस करना है। फिर थर्ड स्टेप है हमारी रेंजिंग और फोकसिंग। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर जैसा मैं अभी यहाँ से ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से देखूंगा, ये जो ऊपर की जो स्लॉट है ये स्लॉट में से मैं यहाँ से देखूंगा ऐसा ऊपर से, और यहाँ की क्रॉस हेयर देखूंगा और सामने का रेंजिंग रॉड देखूंगा। तो ये तीनों भी एक लाइन में आना चाहिए, ऐसा मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा बराबर। तो मेरा इधर का वेन, यहाँ का क्रॉस हेयर और सामने का रेंजिंग रॉड तीनों एक लाइन में मैंने ला लिया। उस समय
ये जो मिरर है, ये मिरर को आपको नीचे करना है, तो वो मिरर के अंदर यदि नीचे में आपकी चेन लाइन है तो वो चेन लाइन भी आपको मिरर के अंदर दिखेंगी. सो दैट वे वी कैन मेक द रेंजिंग ऑफ द रेंजिंग रॉड. तो हमारा जो कंपास है वो अपना सर्वे लाइन के ऊपर बराबर अलाइन हो गया. सो दैट प्रोसीजर वी हैव टू कैरी आउट. सो देन नेक्स्ट स्टेप इज रीडिंग. अब ये आपका क्या हो गया कि कंपास आपने ऐसा होल्ड किया है, आपका कंपास सर्वे लाइन के साथ में अलाइन हो गया और कंपास की सुई इधर नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही. तो नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से आपका सर्वे लाइन के साथ में कितना एंगल है वो आपको प्रिज्म के अंदर दिखेगा बराबर. सो यू हैव टू टेक द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द प्रिज्म. तो ये प्रिज्म को आपको एडजस्ट करके रीडिंग देखना है. तो यहाँ से आप देख रहे नीचे, ये होल में से नीचे देखेंगे तो यहाँ का रीडिंग आपको दिखाई देगा और वो एंगल आपको नोट करना है. इसके अंदर यहाँ पे एक इंडेक्स मार्क लगा होता है, वो मार्क के साथ में जो डिस्क के ऊपर का रीडिंग है वो रीडिंग आपने नोट कर लिया तो आपको एंगल मिल जाएगा और दैट एंगल विल बी एंगल ऑफ द सर्वे लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ में आपके सर्वे लाइन का एंगल क्या है वो आपको मिल जाएगा एंड दैट यू कैन रिकॉर्ड इन द नोटबुक और फील्ड बुक. एंड लाइक वे हमको यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग मिलेगा. सो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन that you will get for the survey line and that is called as whole circle bearing. तो whole circle bearing का मतलब है एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो वो ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इस प्रकार से प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल करते हैं एंड देन वी कैन रिकॉर्ड द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन. तो हमारे सर्वे लाइन की डायरेक्शन हमको यहाँ पर पता चल जाती. सो फॉर दैट नाउ वी लाइक वी वाइट द व्हेन वी आर यूजिंग द कंपास. सो फर्स्ट स्टेप वी कैन से दैट इट इज ए सेंटरिंग. तो आपको यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कंपास को सेंटर पे बराबर स्टेशन के ऊपर लगाना है. देन सेकंड इज फॉर सेंटरिंग दैट यू हैव टू एडजस्ट द लेग ऑफ द ट्राइपॉड. ट्राइपॉड के तीनों पैर आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, प्लम्ब अप बराबर सेंटर के ऊपर आना चाहिए. लाइक प्रोसीजर वी हैव टू कैरी आउट द सेंटरिंग. देन सेंटरिंग इज चेक्ड बाय विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब अप और बाय ड्रॉपिंग द स्टोन एंड दैट विल यू कन्फर्म. देन नेक्स्ट इज लेवलिंग. लेवलिंग में आपको मैंने बताया कि बॉक्स को आपको एडजस्ट करके बराबर फ्री फ्लोटिंग के स्टेट में आपको कंपास की लेवल एल्यूमिनियम जो रिंग है वो लाना है. और थर्ड स्टेप है फोकसिंग करना, रेंजिंग करके सर्वे लाइन के लाइन में हमारा जो कंपास की डायरेक्शन है वो लाने की. सो दैट विल बी द थर्ड एंड देन वी कैन ऑब्जर्व द एंगल बेरिंग. सो बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर वी कैन सेट द कंपास एंड वी कैन टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बेरिंग. तो कंपास का इस्तेमाल करके हम लोग इस प्रकार से ट्राइपॉड के ऊपर कंपास लगा के प्रिज्म में से क्रॉस वेयर में से रेंजिंग रॉड देख के सर्वे लाइन का एंगल जो है वो हम लोग गिन सकते हैं. सो दिस प्रोसीजर वी हैव टू अडॉप्ट. नाउ दिस वी हैव सीन दैट प्रिज्मेटिक कंपास. तो दूसरे टाइप का कंपास होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्वेयर कंपास. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपास जनरली वी आर यूजिंग. सो वन इज प्रिज्मेटिक कंपास एंड अदर इज सर्वेयर कंपास. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज द प्रिज्मेटिक कंपास. इसके अंदर ये एल्यूमिनियम की रिंग है जहाँ से वो बीच में से जुड़ी हुई है और ये एल्यूमिनियम रिंग के नीचे में उसको मैग्नेटिक की नीडल लगी हुई है और ये रिंग वो नीडल के साथ में घूमती बराबर ऐसी. सो इन द प्रिज्मेटिक कंपास द एल्यूमिनियम रिंग फिटेड विद द मैग्नेटिक नीडल दैट फ्लोट्स ऑन द पाइवॉट एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट रिंग वी आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन. तो हम लोग ये प्रिज्मेटिक कंपास में हमारा जो ये एंगल का जो एल्यूमिनियम रिंग है जिसके ऊपर एंगल मार्किंग है 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 360 डिग्री तक का, ये जो एल्यूमिनियम की रिंग है ये हमारी घूमते रहती, फ्लोटिंग है, क्योंकि उसको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाना है. इसके अलावा फिर जो हमारा सर्वेयर कंपास है, यदि सर्वेयर कंपास में देखेंगे तो ये एल्यूमिनियम की रिंग है ये फिक्स है बॉक्स के अंदर. सो हियर दीज आर द मार्किंग्स 0 से लेके 360 के जो एंगल भी जो भी है ये मार्किंग बॉक्स के अंदर फिक्स है और यहाँ पर सिर्फ नीडल है फ्लोटिंग वाली. सो हियर ओनली नीडल इज देयर. तो यहाँ पे सिर्फ हमारी नीडल है ये वाली. सो नीडल इज फ्लोटिंग. तो ये कंपास के अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो यहाँ पर भी आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का सब मार्किंग रहेगा लेकिन वो मार्किंग फिक्स रहेगा. यहाँ पर वो सारा मार्किंग एल्यूमिनियम की रिंग के ऊपर है और ये एल्यूमिनियम रिंग ये नीडल के साथ में घूम रही है. सो दैट इज द डिफरेंस. सो दिस टाइप ऑफ सर्वेयर कंपास ऑल्सो वी कैन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द बेरिंग.
Now actually what is the difference between these two then? So that we will see now step by step. So here we can use the prismatic compass or we can use the surveyor compass. तो prismatic compass का जैसा हमने construction देखा, now we will see the construction of the surveyor compass. So in the top view you can see that इसके अंदर हमारा जो ये मार्किंग के एंगल है, ये रिंग जो है हमारी बॉक्स के अंदर फिक्स है और सिर्फ बीच में हमारी मैग्नेटिक नीडल जो है वही सुई के ऊपर घूम रही है हमारी. सो मैग्नेटिक नीडल इज ओनली फ्लोटिंग एंड द ये रीडिंग जो है एंगल के, दैट रीडिंग्स आर फिक्स ऑन द बॉक्स. और ये सर्वेयर कंपास के अंदर यहाँ पर इसके अंदर स्पिरिट लेवल भी है, यानी आप उसके अंदर का जो बबल है वो बबल देख के आप कंपास को लेवल कर सकते बराबर हॉरिजॉन्टली. सो दैट इज द एडिशनल एडवांटेज गिवन हियर. एंड ऑन टू दिस रिंग देयर आर मार्किंग्स आर देयर. अब ये मार्किंग यदि आप गौर से देखेंगे, सो हियर एक्चुअली देयर इज अ मार्किंग ऑफ, ये यहाँ पर है 0 डिग्री. सो हियर देयर इज अ 0 डिग्री मार्किंग. सो दिस इज 0 और फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक है. वैसा यहाँ पे 10, 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक यहाँ पर है. सो दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. उसी प्रकार से यहाँ पर 0 है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. सो इन द सर्वेयर कंपास यहाँ पर आपका साउथ, यहाँ पर साउथ है तो ये 0 डिग्री है. सो दिस इज साउथ एंड 0 डिग्री. सो दिस इज नॉर्थ एंड 0 डिग्री. और ये ईस्ट है तो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये वेस्ट है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है. सो लाइक वे देयर इज डिफरेंस ऑन द मार्किंग. ये जो मार्किंग है ये इसका डिफरेंस है हमारे सर्वेयर कंपास में. सो दैट वी विल सी. अब यहाँ पे यदि हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो इसके अंदर आपकी जो सुई है मैग्नेटिक नीडल ये घूम रही है, और आप यहाँ से ये वेन में से देख सकते हो यहाँ की क्रॉस हेयर को और रेंजिंग रॉड को फोकस कर सकते हो. और ये सुई फिर जो एंगल दिखाएगी, जो एंगल पे जाके रुकेंगी वो एंगल हो जाएगा आपका बेयरिंग. सो इन द सर्वेयर कंपास ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व द बेयरिंग. बट व्हाट इज द डिफरेंस देन? सो दैट डिफरेंस वी विल नाउ अंडरस्टैंड. जब हम लोग ये सर्वेयर कंपास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा नॉर्थ के पास में एंगल है 0 डिग्री का और साउथ के पास में भी एंगल है 0 डिग्री का. और साउथ से इधर 10, 20, 30, 40 गए हम लोग, और इधर भी 10, 20, 30, 40 एंगल से गए. सो 0 to 90 डिग्री मार्किंग आर देयर एंड 0 90 डिग्री मार्किंग आर देयर. तो अब आपकी यहाँ पे सुई यहाँ पर यदि है तो आपको 10, 20, 30, 40 और 50 इसके बीच में यानी 45 डिग्री. तो आपका एंगल हो जाएगा साउथ 45 डिग्री ईस्ट, साउथ 45 डिग्री ईस्ट. सो लाइक वे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. इसको यहाँ पे मार्किंग दिखाया गया है ये लाल वाला, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन से आपको ऑब्जर्वेशन लेना है, ये वाले एंड से आपको ऑब्जर्वेशन लेना है. तो ये सुई जो एंगल दिखाएंगे वो एंगल डायरेक्ट आपको ऑब्जर्व करना है. और वो ऑब्जर्व एंगल को कैसा लिख सकते हैं हम लोग? लाइक वे नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, यानी उत्तर से पूरब की तरफ 30 डिग्री, या फिर यहाँ पे नॉर्थ 42 डिग्री वेस्ट, यानी उत्तर से पश्चिम की ओर 42 डिग्री. तो नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, नॉर्थ से वेस्ट के तरफ, ये दोनों भी एंगल दिखा सकते हैं. या फिर साउथ से 65 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी दिखा सकते हैं. या फिर साउथ से 55 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट. तो ईस्ट और वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंड साउथ, दैट वी आर ऑब्जर्विंग शोइंग. तो यहाँ पे ऐसा बेयरिंग आपने बताया तो आपको तुरंत समझ में आ जाता कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी लाइन है और नॉर्थ से ईस्ट के तरफ 30 डिग्री का एंगल है. सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड दैट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वी आर गेट विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास. तो सर्वेयर कंपास से हमको डायरेक्शन के रेफरेंस में एंगल मिलता है, दैट इज एक्चुअली द बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन. और प्रिज्मेटिक कंपास से भी एंगल मिलता है, लेकिन वहाँ पे हमको 0 डिग्री से लेके तो 360 डिग्री तक जितना भी बड़ा एंगल होगा वो पूरा एंगल ऑब्जर्व करना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल्सो द वी कैन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्शन. तो हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास भी यूज कर सकते, सर्वेयर कंपास भी यूज कर सकते, बट मोर प्रिफरेबल इज सर्वेयर कंपास, क्योंकि सर्वेयर कंपास हमको इस फॉर्मेट में ऑब्जर्वेशन देता है जिसके अंदर आपको नॉर्थ से 42 डिग्री वेस्ट के तरफ, तो ये क्लियरली इंडिकेट होता है हमारा कि हमारी सर्वे लाइन किधर जा रही करके, ऐसे इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही. तो उत्तर दिशा के संदर्भ में हमारी सर्वे लाइन कहाँ जा रही है ये हमें तुरंत पता चलता है
Therefore, most of the time in the survey work, it is recommended to use the surveyor compass. इसीलिए उसका नाम surveyor compass पड़ा है. So that is the use of surveyor compass. So now here you can see that with this surveyor compass, so I have already shown that there is north and south, east and west, and from north towards east west 0 to 90 degree observations are there. So that way we can use the surveyor compass. Now if we compare this surveyor compass with the prismatic compass, then we can see all these are the differences are there. तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग यहाँ पर समझेंगे. तो हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है उससे आपको जो बेरिंग मिलता है वो मिलता है WCB. WCB का मतलब ऐसा है कि हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन है और हमारी सर्वे लाइन इधर है जा रही है ऐसी. तो यहाँ से इतना बड़ा एंगल ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी नॉर्थ से 0 डिग्री से चालू हुआ तो वो 360 डिग्री तक का कहीं भी जा सकता है. एंड दैट इज कॉल्ड एज होल सर्कल बेरिंग. सो इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, इसलिए उसको होल सर्कल बेरिंग बोलता है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल गिन रहे हैं हम लोग. लेकिन सर्वेयर कंपास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ से ईस्ट के तरफ या नॉर्थ से वेस्ट के तरफ, ये दोनों तरफ गिन रहे हैं हम लोग. नॉर्थ से या साउथ से भी हम लोग वेस्ट के तरफ या साउथ से नॉर्थ के तरफ. सो साउथ से हम लोग ईस्ट या वेस्ट या फिर नॉर्थ से ईस्ट या वेस्ट दोनों गिन रहे हैं हम लोग. तो हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री तक ही रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस बेरिंग. सो दैट वी विल सी अगेन इन डिटेल. तो प्रिज्मेटिक कंपास से हमको होल सर्कल बेरिंग मिलता है जिसकी रेंज 0 से लेके 360 डिग्री तक होती है, और सर्वेयर कंपास से हमको रिड्यूस बेरिंग मिलता है जिसकी रेंज हमारी 0 से लेके 90 डिग्री तक होती है. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर. सो हियर विद दिस प्रिज्मेटिक कंपास we will get the angle of survey line with respect to north. आपको यहाँ पे एंगल ऑफ सर्वे लाइन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, लेकिन यहाँ पे आपको बेरिंग मिलेगा डायरेक्ट. बेरिंग मीन्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो यहाँ पे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना है उतना ही एंगल आपको मिलेगा. सो दैट बेरिंग ऑफ लाइन वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास. देन यहाँ पे मैंने जैसा बताया प्रिज्मेटिक कंपास की जो एल्यूमिनियम की रिंग होती है उसके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन होता है. 0 to 360 डिग्री के मार्किंग होते पूरे, यानी 0 से स्टार्ट हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100, 110, 20, ऐसा 180 तक, फिर उसके आगे पूरा 270 तक और उसके आगे 360 तक. सो इन द प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशन मार्किंग ऑफ द एंगल आर फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, एंड इन द सर्वेयर कंपास यहाँ से 0 से 90 डिग्री ईस्ट की तरफ, 0 से 90 डिग्री वेस्ट की तरफ, ऐसा साउथ से तरफ भी होता है. So the angle range is 0 to 90 degree only in the surveyor compass. Then यहाँ पे हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में हमारी रेफरेंस डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी हमारा कंपास किधर भी घुमाया तो नॉर्थ डायरेक्शन से ही उसका एंगल आपको मिलेगा, या यहाँ पर आपको नॉर्थ के साथ में मिलेगा एंगल या कभी कभी साउथ के साथ में मिलेगा. बिकॉज वॉट एवर द सिचुएशन ऑफ द सर्वे लाइन वॉज देयर, तो जो क्वाड्रेंट में लाइन होगी उसके हिसाब से आपका एंगल यहाँ पर चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास. देन डायरेक्शन ऑफ द एंगल हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज गिनते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में. प्रिज्मेटिक कंपास से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही गिनना है हमेशा. दैट इज कॉल्ड एज होल सर्कल बेरिंग ओनली. लेकिन हमारे सर्वेयर कंपास में हम लोग वैसा नहीं करते. इन द सर्वेयर कंपास हम लोग ये यदि नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो हम लोग यहाँ से ये एंगल भी गिनते या इधर से ये वाला एंगल भी गिनते, या यहाँ से ये एंगल गिनते या इधर से ये वाला एंगल गिनते. तो हमारा एंगल हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी हो सकता है. दैट इज विद द सर्वेयर कंपास. देन मार्किंग जो है ये प्रिज्मेटिक कंपास में हमारा ग्रेजुएशन के मार्किंग होते हैं ऑन द एल्यूमिनियम रिंग. एल्यूमिनियम की रिंग पूरी गोल गोल घूमती है वो नीडल के साथ में, लेकिन यहाँ पे हमारा ग्रेजुएशन जो है वो बॉक्स के अंदर फिक्स होता है. सो ग्रेजुएशन मार्किंग इज फिक्स ऑन द बॉक्स बेस. बॉक्स के अंदर रिंग के मार्किंग फिक्स होते हैं वहाँ पे. यहाँ पे जो है वो एल्यूमिनियम रिंग के ऊपर रहती है, वो रोटेटिंग रहती है डिस्क. देन ऑब्जर्वेशन में हमको प्रिज्म के जरिए आपको रीडिंग लेना पड़ता. तो प्रिज्मेटिक कंपास में आपको प्रिज्म के अंदर देखना है तो आपको रीडिंग मिलेगा. सर्वेयर कंपास में आपको डायरेक्ट आंखों से लेना है, ऊपर से दिखता है अपने को कंपास के अंदर सुई दिख रही है आपको ऐसी बराबर, और ऊपर से आपने देख लिया कितना एंगल है तो डायरेक्ट एंगल मिलेगा.
सो ऑब्जर्वेशन इज सीन बाय द आई इन द सर्वेयर कंपास। देन नीडल जो है इसके अंदर एल्यूमिनियम रिंग के साथ में नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास में। प्रिज्मेटिक कंपास में रिंग एल्यूमिनियम रिंग के साथ में नीडल है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नेटिक नीडल रहेगी सर्वेयर कंपास के अंदर, ऑलरेडी एज वी हैव सीन इन द डायग्राम। देन ऑपरेशन के अंदर आपको साइटिंग और रीडिंग एट ए टाइम कर सकते हैं आप। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या करूंगा मैं, जो वेन है वहां से देखूंगा और उसके नीचे ही प्रिज्म लगता है उसके अंदर होल के अंदर देखूंगा तो रीडिंग दिखेगा मुझे। तो प्रिज्मेटिक कंपास से ऑब्जर्वेशन साइटिंग करना रेंजिंग रॉड का और रीडिंग लेना दोनों एक ही साथ में कर सकते, लेकिन सर्वेयर कंपास में वैसा नहीं करना पड़ेगा। सर्वेयर कंपास में आपको पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और फिर ऊपर से जाके देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ दिखा रही है नीडल करके। सो ऑब्जर्वेशन इज नॉट साइमल्टेनियस इन द सर्वेयर कंपास। देन इंडेक्स पॉइंट जो होता है वो इंडेक्स पॉइंट हमारा फिक्स होता है प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर। जो प्रिज्म है उसके नीचे एक मार्किंग रहता है ऐसा पीतल का, वो मार्किंग के साथ में जो एंगल है वो एंगल हम लोग प्रिज्म में से देखते बराबर। सो इंडेक्स मार्किंग जो है वो फिक्स रहता है प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इंडेक्स पॉइंटर नहीं रहता। जो नीडल है वो नीडल ही आपको एंगल दिखाती कि कौन सा रीडिंग है करके यहाँ पे। सो हियर नीडल एक्ट एज ए इंडेक्स पॉइंटर एंड मार्किंग जो प्रिंट है उसकी, ये मार्किंग प्रिंट जो एल्यूमिनियम रिंग के ऊपर जो मार्किंग होते हैं एंगल के 10, 20, 30, 40 डिग्री के, ये इन्वर्टेड रहते क्योंकि प्रिज्म में देखने के बाद में वो अपने को सीधे दिखते, यानी छपे हुए रहते उल्टे और अपने को प्रिज्म में से देखते सीधे। लेकिन आपको इसके अंदर आप यदि देखेंगे तो इसके अंदर ग्रेजुएशन मार्किंग अपना डायरेक्ट सीधा सीधा प्रिंट रहता है। सो इस प्रकार से वी कैन यूज द प्रिज्मेटिक कंपास एंड दिस प्रिज्मेटिक कंपास यू कैन प्लेस ऑन द ट्राइपॉड इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन सर्वेयर कंपास के लिए आपको ट्राइपॉड कंपल्सरी होता है। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। सो व्हेन यू ऑब्जर्व दैट, तो आपको सर्वेयर कंपास से 0 से 90 डिग्री के एंगल में मिल रहा है, यहाँ पर आपको 0 से 360 डिग्री मिल रहा है। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्रिज्मेटिक कंपास ऑलवेज गिव यू द होल सर्कल बेयरिंग एंड the surveyor compass always give you the reduced bearing. So that is the difference we have to remember between the surveyor compass and prismatic compass. So in this lesson, now up till now we have seen the different concepts of the meridian or magnetic meridian and true meridian, and then we have seen the construction of the prismatic compass and surveyor compass, and similarly we have seen the difference between the prismatic compass and surveyor compass. So here we will stop for this lesson, and in the next lesson again we will meet with the new concept, that is the types of bearing. अब ये bearing के अलग अलग types क्या है वो हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं. So in the here in the nutshell you can see that when we use the prismatic compass, तो आपकी ये नॉर्थ डायरेक्शन है और हमारी सर्वेयर लाइन ऐसी जा रही है, इधर जा रही है सर्वे लाइन हियर. सो दिस एंगल ये हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं थीटा. सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन जो भी सर्वे लाइन का एंगल हम लोग गिन रहे दैट इज आवर बियरिंग. और यदि लाइन हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमको ये वाला एंगल गिनना पड़ेगा. तो ये एंगल बढ़ गया अपना 90 से ज़्यादा बढ़ गया हमारा. ये लाइन हमारी इधर है तो यहाँ से इतना बड़ा एंगल गिनना पड़ेगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है हमारी तो एंगल हमारा 180 से 270 के बीच में आएगा. सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री और 360 डिग्री. और यदि लाइन हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम एंगल गिनेंगे तो ये एंगल 270 से 360 के बीच में आएगा. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास. यानी प्रिज्मेटिक कंपास से जो रीडिंग आ रहे हैं हमारे वो आ रहे हैं 0 डिग्री से लेके तो 360 डिग्री तक. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज होल सर्कल बेयरिंग. होल सर्कल बेयरिंग यानी यहाँ से लेके पूरा राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग एंगल गिन सकते हैं. सर्वे लाइन हमारी इधर रहे इधर रहे इधर रहे या कहीं भी रहे. सो दैट इज द विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सर्वेयर कंपास सो देन हियर विद द हेल्प ऑफ ये हमारा यदि सर्वेयर कंपास से हम लोग यदि सोचेंगे सो हियर दिस इज आवर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. अब यदि हमारी सर्वे लाइन इधर जा रही है तो ये वाला एंगल गिन रहे हैं हम लोग तो ये एंगल हमको कैसा बोलना पड़ेगा, थीटा है समझ लो. तो नॉर्थ
30 डिग्री ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये एंगल है, तो ये एंगल हमको गिनना है यहाँ पर। लेकिन ऐसा यदि ये लाइन इधर है तो हमको साउथ से एंगल गिनना पड़ेगा उसका इतना वाला, ये सो दिस एंगल वी रिक्वायर। तो ये जो एंगल है ये हमको बोलना पड़ेगा साउथ 30 डिग्री ईस्ट, यानी साउथ से पूरब की तरफ। यदि एंगल लाइन हमारी इधर के एंगल में है तो हमको ये वाला एंगल थीटा गिनना है। तो ये जो थीटा है वो साउथ से वेस्ट की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग साउथ 30 डिग्री वेस्ट बोलना पड़ेगा आपको बियरिंग का एंगल। और यदि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन है तो फिर से नॉर्थ से एंगल गिनना पड़ेगा थीटा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। सो लाइक वे विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास जो हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ये सारे 90 डिग्री के अंदर ही रहने वाले हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज reduced bearing with the help of surveyor compass. So this important concept we have to remember regarding the bearing, and in the next lesson we will talk about the different types of bearing. Till then, thank you for watching this video lecture. Thank you.